let's start with chapter number 3, separation of substances. So in this chapter, I will tell you about how we separate different things. ठीक है, हम अलग अलग चीजों को कैसे separate करते हैं, different process I will tell you, right? So let's start the chapter. Here given some below pictures object that you see in your daily life. You have to classify according to their material कि कौन सा metal का है, कौन सा plastic का है, glass और wood, right? So first of all, let's see what is mixture. Mixture होता क्या है? देखो आप different चीजें देखते हो अपने आसपास and you see variety of substance. And for example, air, salt, soil, milk, rock, smoke and wood. It will be surprising to that इसमें से कोई भी pure substance नहीं है, ठीक है? No one is pure substance. Actually, they all are mixtures. सारे क्या है? Mixtures है. So we can say that each of the gases is pure in nature. अगर हम बात करें जो हर एक गैस होती है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, हाइड्रोजन हो, सब अपने आप में प्योर होती है. लेकिन जो मिक्सचर इज अ सब्सटेंस, मिक्सचर क्या होता है? सब्सटेंस होता है दैट कैन बी सेपरेटेड इनटू 2 और मोर प्योर सब्सटेंस, जिसको आप 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंस में क्या कर सकते हो? तोड़ सकते हो. दैट इज नोन योर मिक्सचर, ठीक है? और हम उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं उसके बेसिस पे तोड़ते हैं. Right, all components of mixture retain individual property. In laminate, जैसे lemon remain its sour taste and sugar remain its sweet taste. ठीक है, शुगर की तो sweetness हो गई और लेमन का क्या हो गया? आपका sourness, खट्टापन. Now types of mixture, we have 2 types of mixture, homogeneous and heterogeneous. Homogeneous mixture क्या होता है? जो आपने देखा होगा जिसके अंदर जो components होते हैं वो खाली मिक्सचर बनाते हैं और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जैसे एयर हो गया, सैचुरेटेड शुगर हो गया. वहीं हम बात करें हेट्रोजेनस मिक्सचर के, दे आर नॉट यूनिफॉर्म. वो यूनिफॉर्म नहीं होते, दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक रॉक, सैंड, वाटर, फूड, राइट? दीज आर एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर. नाउ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, हाउ वी सेपरेट डिफरेंट मिक्सचर? सो इट सेपरेटिंग मीन्स जब हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं एक चीज को दूसरी चीज में से, ठीक है? What we are doing, we are removing one things from another thing, that is known as separation of mixture. Now why do need for separation? आपको need क्यों पड़ती है separation? First is to obtain 2 different useful components. आप 2 other useful components को निकाल रहे हैं, या फिर आप remove कर रहे हो non useful components को, harmful components को, जैसे impurities हो उसको remove कर रहे हो, or you are regrouping substances according to their different sizes. Now we have different methods. Let's study one by one. First is separation of solid from other solid. जब हमें solid को दूसरे solids में से निकालना, so we have different processes like we have hand picking. है ना, घर में मम्मा लोग चावल साफ करती है तो पत्थर हाथ से उठाती है उसमें से, right? So that is the hand picking method. So it is useful where impurities are large enough to see clearly, having different colors, shapes and are present in small quantity. ये बहुत छोटे छोटे quantities में present होती है, right? So we can say that they can be separated or they can be thrown away by the hand picking method. ठीक है? Then we have threshing. Threshing क्या होता है? इसमें हम grains को separate करते हैं. देखा ना, ऐसे बहुत बड़ा सा एक hard material होता है, उस पे हम grain को ऐसे करके मारते हैं, उसको झाड़ते हैं. ठीक है, ये method होता है threshing का. ठीक है, जब आपको ड्राई स्टॉक्स को शेड ऑफ करना है. सो वी कैन से दैट दिस मेथड इज डन बाय हैंड, हाथ से करा जाता है, मैनुअली करा जाता है. एंड नाउअडेज वी आर यूजिंग थ्रेशिंग मशीन आल्सो टू डू दिस टाइप ऑफ वर्क. देन वी हैव मेथड्स ऑफ थ्रेशिंग. लेट्स स्टडी द मेथड बीटिंग विद स्टिक्स और मैलेट्स, राइट? बीटिंग अगेंस्ट स्टोन और हार्ड मेटल. आई हैव टोल्ड यू अबाउट सम अरहड़ को, या आप थ्रेशिंग मशीन का यूज करो, ब्लक्स का यूज करो, लाइक almost all crop. Trampling under feet of bullock or wheel of truck. देखो सीरियल्स और पल्सेस उनको ऐसे के वो चढ़ाते हैं उन पे जिसमें वो सेपरेट हो जाए, ठीक है, कि बुलक या ट्रैक्टर. नेक्स्ट इज विनोइंग. विनोइंग क्या? इट्स अ मेथड जिससे हम लाइटर सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं, किससे? हैवियर सब्सटेंसेस से. सो और हम किससे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ विंड. देखो लाइटर मटेरियल क्या होता है? वो ब्लो हो जाता है, और जो हैवियर होता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है. Right, now activity is given to you over here. This is to understand the process of winnowing. यहाँ पे आपको winnowing का process समझना है. आप इसको simply read कर सकते हैं. वैसे मैंने आपको बता दिया क्या होता है कि जब आप, जैसे आप example ले लीजिए, जब हम गेहूँ निकलवाते हैं तो जो dirt होती है वो तो उड़ जाती है और जो heavy pet particles होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं. Now sieving, it is used to separate substance of different sign by passing through them. See, आटा छानते हैं हम घर में,
जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो तो नीचे चले जाते, ठीक है, और जो आपके हेवियर पार्टिकल होते हैं वो आपके ऊपर उसमें रह जाते हैं. Now let's study about the magnetic separation. What is magnetic separation? So in this method, what happens? One of the constituents of mixture is magnetic in nature. जो मैग्नेट से अट्रैक्ट, जैसे आयरन, ये हाईली मैग्नेटिक है. इसमें जो मैग्नेटिक सप्रेशन होता है वो समटाइम्स इट इज यूज टू सेपरेट आयरन ओर फ्रॉम सिलिकेट रॉक, राइट. ये आप ज्यादातर आप देखेंगे जब हम इंडस्ट्रियल वेस्ट को देखते हैं उसमें ज्यादा इसका यूज करा जाता है. नेक्स्ट इज सेपरेशन. अब हम इनसॉल्युबल सॉलिड्स को लिक्विड से सेपरेट करेंगे तो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स. सो फर्स्ट इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. व्हाट हैपन, इट इज यूज्ड टू सेपरेट सब्सटेंस. इससे हम सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं. मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर और मडी वाटर. आप मडी वाटर लेंगे बीच में, ठीक है, आप देखेंगे कि जब आप डालेंगे उसको वाटर में मड को तो देखेंगे कि वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, राइट. सो सेंडर के पार्टिकल स्टार्ट सेटल डाउन और सेडिमेंट्स होते हैं, और जब ये सेटल डाउन करने लग जाते हैं हेवियर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम मिक्सचर, उसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं. व्हाट इज डिकेंटेशन? जब टॉप जेंटल जो लेयर होती है क्या होता है, उसको वो डिस्टर्ब हो जाता, रिमेन अनडिस्टर्ब व्हाइल व्हाट दे आर सेडिमेंट, इसको हम डिकेंटेशन. नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन. देखो हम सेडिमेशन करते हैं, उसके साथ साथ अगर आपको कुछ इनसॉल्युबल सॉलिड्स को लिक्विड मिक्सचर से निकालना है, लिक्विड सॉलिड मिक्सचर से, तो आपको फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा. इट इज दे डू नॉट सेटल इजिली, दे आर कैरिड ऑफ एंड द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन यूजिंग अ फिल्टर, उसको क्या बोला जाता है? फिल्ट्रेशन. व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन होता है सिमिलर टू सीविंग. जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे हम एवरीडे लाइफ में घर का टैप वाटर है, ठीक है, आप उसको क्या करते हो, वर्क करता है, और आप उसको जो फिल्टर होता है, आरओ लगे होते हैं ना घर में, उनसे फिल्टर करके पीते हैं. दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ फिल्ट्रेशन. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूस, दे आर फिल्टर. देखा ना, जब आप जूस वगैरह पीने जाते होंगे तो वो जो सीविंग छन्नी होती है ना उसमें छान के देते हैं. दैट इज ऑल्सो द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन. नाउ सिटी वाटर वर्क. लेट्स स्टडी अबाउट द सिटी वाटर वर्क. Water is very important item. Many disease are caused by drinking unclean water. आपको देखा होगा ज्यादातर जो हमें डिजीज या प्रॉब्लम होती है वो अनक्लीन पानी पीने की वजह से होती है, राइट. सो देयर इज नेसेसरी टू क्लीन इट. टैप वाटर सप्लाइड टू आवर होम्स इज फर्स्ट क्लीन. बस सिटी वाटर वर्कर्स क्लीन करते हैं, आपको अपने घर में भी क्लीन करना चाहिए, एंड देन ओनली यू शुड ड्रिंक इट. Now let's study the procedure like storage. About 90% of impurities जो होती है वो 24 hours में storage, मतलब by the storage वो settle down हो जाती है. Filtration remove impurities. Disinfection that means that water is disinfected by the chlorination, या क्लोरीन टैबलेट्स डाल दे, ओजोनाइजेशन करें, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के थ्रू ड्रिंकेबल बनाए उस वाटर को. दीज आर द डिफरेंट वे. नाउ फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स. नाउ आई विल टेल यू सम फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक फिल्ट्रेट. व्हाट इज फिल्ट्रेट? जब कोई लिक्विड जो होता है वो फिल्टर पेपर में पास करता है, उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं. नेक्स्ट इज रेसिड्यू. रेसिड्यू क्या होता है? जो भी इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट होता है वो रिटेन हो जाता है फिल्टर पेपर. ऊपर जो फिल्टर पेपर बच जाता है वो आपका सॉल्यूट होता है, रेसिड्यू होता है, राइट. नाउ टू ऑब्टेन क्लीन वाटर फ्रॉम मडी वाटर. अब आपको ये एक्टिविटी दी है, आप घर पे जाके इसको खुद एक बार प्रैक्टिस करेंगे. आप बीकर लेंगे, मड को कलेक्ट करेंगे, उसमें डालेंगे, और फिर उसको आप उस प्रोसेस को एक बार करके दीजिए. नेक्स्ट इज सेपरेशन. जब आप सॉल्युबल सॉलिड्स को लिक्विड से कैसे निकालेंगे, हियर द डिफरेंट मेथड इज देयर. दैट इज इवोपरेशन. व्हाट इज इवोपरेशन? ये प्रोसेस में वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वाटर वेपर में. इसको हम क्या कहते हैं? इवोपरेशन, राइट. इन दिस मेथड व्हाट हैपन कि जो एक सॉलिड होता है वो सेपरेट हो जाता है लिक्विड से, ठीक है. सॉल्यूशन को हीट करा जाता है, फिर वो इवोपरेट करता है, सॉलिड नीचे बैठ जाता है बिहाइंड, और आपने देखा होगा, और आपका जो सॉल्ट है वो डिसॉल्व हो जाता है. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आपका इवोपरेशन. नाउ हियर एक्टिविटी इज आल्सो गिवन टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन. तो आपको एक स्पैटुला लेना है, एंड आपको एक सॉल्ट लेना है, बीकर लेना है, उसमें पानी डिसॉल्व करना है, ठीक है. डू इट एट होम, और फिर आपको उसका ऑब्जर्वेशन में रिकॉर्ड करना. व्हेन सॉल्यूशन कंटेनिंग डिसॉल्व सॉल्ट, जब कोई भी सॉल्यूशन में डिसॉल्व सॉल्ट है और उसको आप हीट करेंगे, सो वाटर वेपराइज लीविंग सॉल्ट बिहाइंड, ठीक है.
और वो वेपराइज एट दैट टेम्परेचर इट विल नॉट वेपराइज. सी वाटर कंटेन्स लॉट्स ऑफ सॉल्ट एंड द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन लार्ज स्केल पे होता है सी वाटर. सो वी कैन से दैट जो ब्रॉड एरिया होता है और जिसकी शेलो डेप्थ होती है, गहराई ज्यादा होती है, वहां पे जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो क्या करता है, ज्यादा सनलाइट को एब्जॉर्व करता है. सो फॉर दैट द पॉन्ड इज फ्लडेड एंड देन कैनाल यू कैन सी दैट मूव्स. द सन इवेपोरेट्स द वाटर, एज द वाटर इवेपोरेट्स जो सॉल्ट है वो तो नीचे रह जाता है और जो आपका वाटर है वो क्या मोर सलाइन वाटर क्रिएट करता है. कंडेंसेशन, दिस इज यूज्ड टू ऑब्टेन लिक्विड फ्रॉम द सॉल्यूशन. वी गेट वाटर फ्रॉम सॉल्ट. कोई सॉल्ट सॉल्यूशन से हमें वाटर मिल गया तो किस प्रोसेस से मिलेगा, कंडेंसेशन. नाउ हियर एक्टिविटी इज गिवन टू यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. ठीक है, आप आइस क्यूब्स लेंगे उससे आप प्रोसेस को कर सकते हैं. ठीक है, जो चेंज होता है जब हम वाटर वेपर को वाटर में चेंज करते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन. नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन. जब आपको प्योर लिक्विड को ऑब्टेन करना है, ठीक है, फ्रॉम सॉल्यूशन, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन. इसमें क्या होता है, जो मिक्सचर होता है लिक्विड का उनको हम सेपरेट करते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट से एट डिफरेंट टेक्निक एंड द मिक्सचर इज स्लोली हीटेड इन अ डिस्टिलेशन क्लास. और जो कंपोनेंट होते हैं आप देखेंगे विद इन द लोअर बॉइलिंग पॉइंट वेपराइज फर्स्ट. वेपर्स आर कलेक्टेड बाय कंडेंसिंग देम इनटू लैबिक कंडेंसर. और जो मिक्सचर होता है containing more than 2 liquids can be separated by this techniques. आप जो 2 different mixture है उसको भी इस टेक्निक से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. नाउ सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड. अब जो इमिसिबल लिक्विड होता है आपको उनको सेपरेट करना है. तो फॉर दैट लिक्विड दैट डज नॉट मिक्स, देखो जो लिक्विड मिक्स नहीं होते एक दूसरे के साथ उनको बोला जाता है इमिसिबल लिक्विड, राइट. सो सेपरेशन थ्रू फनल. अ सेपरेटिंग फनल इज यूज्ड टू सेपरेट 2 इमिसिबल लिक्विड. देखो जब मिक्सचर है 2 इमिसिबल लिक्विड का, उसको एक सेपरेटिंग फनल में डाला. सो मिक्सचर को पहले हम शेड करते हैं बाय इन्वर्टिंग द फनल फॉर फ्यू टाइम्स, थोड़े टाइम के लिए. एंड देन एट दिस स्टेज व्हाट हैपन, जो फनल है उसको हम क्लोज कर देते हैं एक एंड पे और लीकेज प्रिवेंट करते हैं, जिससे जो 2 डिस्टिंक्ट लेयर है लिक्विड की वो क्या फॉर्म करे, फनल को. द डेंसर लिक्विड सेटल एट द बॉटम ऑफ द फनल और फॉर्म द बॉटम लेयर. और जो लेस डेंस लिक्विड होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, टॉप लेयर. एंड द लेयर आर सेपरेटेड बाय ड्रेनिंग ऑफ द बॉटम लेयर इनटू बीकर. ठीक है, देन वी हैव सॉल्युबिलिटी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट. ठीक है, सॉल्यूट क्या होता है, जो डिसॉल्व करता है लिक्विड में, और सॉल्वेंट क्या होता है, लिक्विड जिसमें आपका क्या सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं. नाउ सॉल्यूशन, इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर. सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है. किसका, जब हम सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट को मिक्स करते हैं तो वो क्या देता है, सॉल्यूशन. नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सॉल्ट. वाटर कैन डिसॉल्व लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस इन इट, देयरफॉर वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्ट. वाटर को हम क्या कहते हैं, वी कॉल वाटर अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. नेक्स्ट इज सॉल्यूबल. व्हाट इज सॉल्यूबल, सब्सटेंस दैट रीडली डिसॉल्व्स इन वाटर, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूबल. नेक्स्ट इज इनसॉल्यूबल, जो डिसॉल्व नहीं करता है उसको हम इनसॉल्यूबल कहते हैं. जैसे सैंड हो गया, फ्लोर हो गया, आटा जिसे हम कहते हैं. नाउ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब कोई भी सॉल्यूशन अपने मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी पे पहुंच जाए उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. ठीक है, राइट. वी कैन से दैट सैचुरेशन पॉइंट इज डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ सॉल्वेंट. जो सैचुरेटेड पॉइंट होता है वो किस टाइप का सॉल्वेंट है वो उस पर डिपेंड करता है. सॉल्युबिलिटी क्या होती है, A solubility of solute is a solvent of a particular temperature, जिसको हम कहते हैं जितना भी amount of solute dissolve हुआ है 100 ml of solvent में, उसको at that temperature that is known as a solubility. Now importance of water as a solvent. देखो water जो है वो universal solvent है, क्योंकि ये क्या कर सकता है, it can dissolve large number of substances. आप जो चाहे इसमें वो dissolve कर सकते हैं. It is neither a base nor a acid, और when distilled it does not conduct electricity. ना ही ये किसी भी तरीके की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती. It water act as a transport medium within organisms for nutrients and waste. और ये किसमें हेल्प करता है, ये आपके सडन टेम्परेचर जो चेंज होता है उसको रिड्यूस करता है. राइट, दिस इज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर. Hope you understood. Now let's do the exercise of this chapter. Now first is multiple choice question, that is oil with water. Oil with water is an example of liquid mixture, right? A mixture of wheat and husk. जो wheat और husk का mixture है
इट इज सेपरेटेड बाय, जो हस्क और व्हीट का मिक्सचर है वो किससे सेपरेट होता है? इट इज सेपरेटेड बाय थ्रेशिंग. विनोइंग इज द प्रोसेस दैट कैन बी यूज टू सेपरेट. विनोइंग एक प्रोसेस है जिससे हम क्या सेपरेट करते हैं? The second one is the mixture of wheat and husk can be separated by hand picking, threshing, sieving. All of these सबसे कर सकते हैं. Winnowing is the process that can be used to separate stone and chaff. The process to obtain salt from sea water. जब हम क्या obtain करते हैं? Salt obtain करते हैं sea water से. उस process को क्या बोला जाता है? That process is known as evaporation. A mixture of peas, guavas kept together in a basket. ठीक है, एक हमने इस मिक्सचर रखा पीस का और गवावा का, kept together in a basket, और उसको आप किससे सेपरेट कर सकते हैं? सीविंग, हैंड पिकिंग, सेडिमेंटेशन या फिल्ट्रेशन, दैट इज हैंड पिकिंग. हाउ वुड यू सेपरेट ऑयल फ्रॉम वाटर? ऑयल को वाटर सेपरेट करना है तो हम क्या करेंगे? डिकेटेशन. Which method you use to separate salt from sea water? That is evaporation. Now let's study the fill in the blanks. Dash is the process used by farmer to separate husk from grain. That is winnowing. The process of separation of insoluble solids from their solution using a filter. उसको क्या कहा जाता है? It is known as filtration. The process of conversion of water into water vapor, it is called evaporation. Change of water vapor into water, condensation. Now, dash is the method obtaining pure liquid from the solution. जब हम pure liquid को solution से निकालते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? Distillation. Now to separate oil from, जब हमें ऑयल को सेपरेट करना है वाटर से, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डिकेंटेशन. Now the method used to separate salt from seawater, that is evaporation. Now write T for true and F for false statement. Addition of two or more substance is equal amount is called measure. It's true. The process of winnowing is used to remove pebble from grain. It's true. Threshing is followed by winnowing. It's false. Now let's start with true and false. You have to write T for true and F for false statement. Addition of two or more substances in equal amount is called mixture. It false. Now process of winnowing is used to remove pebble from grain. नहीं, husk remove करते हैं, तो false है. Threshing is followed by winnowing. It's true. Now magnetic separation can be used to separate mixture if all the constituents of the mixture are magnetic in nature. सारे क्या होते हैं? मैग्नेटिक इन नेचर होते हैं. इट्स फॉल्स. सेटलिंग डाउन, जब हैवी पार्टिकल्स मिक्सचर से सेटल डाउन करता है उसको डिकेंटेशन कहते हैं. इट्स ट्रू. इवोपरेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड. इट्स ट्रू. नाउ सीविंग इज यूज्ड टू सेपरेट डिफरेंट पार्टिकल्स इन मिक्सचर. इट्स ट्रू. नाउ मैथ्स द फॉलोइंग क्वेश्चन. हैंड पिकिंग, removal
manual removal of particles from mixture. Residue solid particles retained on the filter paper. Then we have winnowing to separate pieces of shaft from the grains by weight. Sieving, that is separation of particles of different size using sieve. Evaporation, liquid into gas, or condensation, gas into liquid. Right? So now let's start with a subjective type question, short answer. What is threshing? Threshing क्या होता है? Right? Now what do you understand by winnowing? When we separate husk from grain, it is called winnowing. Which man is sieving method preferred? ठीक है, आपको आटा छानना है, मतलब उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं. What is evaporation? When one liquid is changed into gas. What are the two types of mixture? Homogeneous and heterogeneous. What role filter papers play in the filter process? देखो जो रेसिड्यू होता है ना वो उसमें आप लोग कलेक्ट कर लेता है. आपको एग्जाम्पल दे रहा है सेपरेशन ऑफ सीड का. नाउ लॉन्ग आंसर, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर? भाई एक सैंपल है मडी वाटर को, सब क्लियर वाटर कैसे ऑब्टेन करोगे? मैंने जो आपको एक्सपेरिमेंट बताया था उस प्रोसेस को आप यहाँ पे दिखा सकते. डिफाइन सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन and then you have to draw a label diagram of laboratory apparatus using filter. रोल क्या होता है फिल्टर पेपर का? फिल्ट्रेशन प्रोसेस दैट यू हैव टू राइट. गिव एन एग्जांपल ऑफ मिक्सचर जिसको आप सेपरेट कर सकते हैं बाय सीवी. ठीक है, हाउ वुड यू सेपरेट मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन फिल? ठीक है, सैंड है उसमें आयरन फिलिंग है, उसको मैग्नेटिक उससे कर सकते हैं. ये आपके हॉट्स दिए हैं, मीन्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. यू हैव टू थिंक एंड राइट देम योरसेल्फ. राइट? Now we have completed this chapter. Hope you understood. Let's meet in the next class. That's all for today. Thank you.